हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रंजन कुमार। आई एम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक व्हिच इज केम इन आवर इलेक्ट्रोथेरेपी। व्हाट इज दैट? इट इज बायोफीडबैक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोफीडबैक? इट मींस biological feedback in our body, like different processes are happening in correct way or not in our body. So it is a non-invasive therapeutic technique that use electronic sensor to monitor involuntary body function. What is that function? Such as like muscle tension, heart rate, brain activity, or like body's posture, like that. So shall we start with the introduction? So, what's definition? Biofeedback is a therapeutic technique that enables a person to gain voluntary control over physiological processes that are normally involuntary, such as muscle tension, heart rate, or skin temperature, by using instruments that provide real-time information about the body function. It means एक ऐसा process है जिसमें हमें body की real time functioning पता कर पाते हैं जो कि हम involuntary है, जो जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, मसल टेंशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, उन सब चीज़ को पता करने के लिए हम बायोफीडबैक का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ये नॉन इन्वेसिव है, इसमें कोई भी हम सिरिंज या निडल का यूज़ नहीं करते हैं। So in physiotherapy, biofeedback most common used to monitor and train muscle activity through electromyography biofeedback. So हम फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू बायोफीडबैक का यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट इजी पता करने का वे होता है इन फिजियोथेरेपी में बायोफीडबैक। सो फर्स्ट, व्हाट इज दैट प्रिंसिपल ऑफ बायोफीडबैक? So based on the operant conditioning, a feedback control system. So operant conditioning के अनुसार biofeedback control system कितने टाइप के होते हैं? So operant conditioning क्या होता है? A type of learning where behavior is modified through reinforcement. It means हम जो भी फंक्शन कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, सो हमारा बॉडी उसको कैसे गेन कर रहा है और उसको कैसे रीइंफोर्स कर रहा है, कैसे डिटेक्ट कर रहा है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, लाइक पॉस्चर सही है या नहीं, लाइक हमारे बॉडी के जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंच रहे हैं वो सही से आ रहे हैं या नहीं, जा रहे हैं या नहीं. सो दैट. सो first क्या होता है operant conditioning में detection. So sensor detects physiological activity like muscle contraction, like their sensor are attached over here, so they can check the afferent fiber of nerves will be activated, or like proper functioning will be happen or not, or like sensory. Amplification and conversion. Was it that? So signal is amplified and converted into the visual or auditory feedback. It means they have received signals by like a vibration or like a visual and auditory as well, and receive signal and like convert into the like their own system, mechanical system. And so what is that exact like functioning or not of body of their specific part where we have to use or implement or like know about the biofeedback mechanism is working or not. So what is next part of the operant conditioning is control and adjustment. So with practice and patient learn to voluntarily increase और डिक्रीज दैट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. लाइक हम जैसे पेशेंट को एक्टिविटी कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, रिहैबिलिटेशन टेक्निक यूज करते हैं, तो पेशेंट में कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेचिंग, एंड्योरेंस, पावर सब मीन्स प्रोसेस बाय प्रोसेस प्रोग्नोसिस होता है और बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग एंड्योरेंस पावर गेन कर लेती है. सो हम उसको उसमें कैसे गेन किया है उसने, और गेन किया है तो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, ये भी पता करने के लिए हम बायोफीडबैक का ऑपरेट कंडीशनिंग वर्क में लेते हैं. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोफीडबैक. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बायोफीडबैक? सो signal detection. So electrodes or sensor placed on the body detect small electrical, thermal, or mechanical changes. So if I am check like our body signals were working or not, like efferent fiber like sensory or motor fiber will be activated or not. So here we can attach like some gadget there is over there, biofeedback gadgets, and they can recognize the like providing some electrical stimulus over there, and their signals will be provided by nerve fibers will be activated or not. So signal detection. Second is mechanism biofeedback is signal processing. So now we like electrical signal gone to the body by via biofeedback machine. Like the weak biological signals are amplified, filtered, and converted into the form of patient can perceive or visual auditory. Like हमने उस पेशेंट के ऊपर सिग्नल पहुंचाया, पेशेंट उसको कैसे रिसीव कर रहा है, लाइक हमने लाइक विजुअल के थ्रू और ऑडिटरी के थ्रू जैसे भी हमने सिग्नल पहुंचाया, तो वो कैसे उसको परसीव कर रहा है, सो उसमें भी वो सिग्नल शो कर जाता है. So there is a biofeedback display. What is that? So the processed signal is displayed as the moving needle light tone or graph that represent muscle activity or other physiological parameters. So there is one biofeedback display. So at first we have provided like stimulus, like either visual, like electrical, or like some auditory or like verbal. So how the patient perceive and how after they can activate an activity on the action of the reaction will be shown on the like feedback machine display. But so next part is fourth one is
cognitive response. So patient consciously attempt to alter the signal, increase muscle activity by adjusting their effort or relaxation. Like हम पेशेंट कॉन्शियस है और हम कुछ भी उसमें मतलब एक्टिविटी करवा रहे हैं, सो उस मशीन को एक सिग्नल जाएगा जो उसको ये बताएगा कि जो मसल में जो कॉग्निटिव पावर है वो एक्टिवेटेड है और मसल वर्क कर रही है। Learning and adaptation through repetition and feedback, the patient learn to control and function even without the device. Like जब बायोफीडबैक हम पेशेंट में लगाते हैं तो पेशेंट बायोफीडबैक मशीन के थ्रू उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही हो, लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर एक्टिविटी जो भी हो रही हो, पेशेंट उसको देख के सीखता है और वो अपने कॉग्निटिव पावर को डेवलप करता है जो कि वो भूल चुका होता है। न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन को रीएक्टिवेट कर रहा होता है जो कि वो भूल चुका होता है। सो धीरे धीरे उसमें कॉग्निटिव पावर डेवलप होने लग जाती है और वो बिना विदाउट बायोफीडबैक मशीन के भी एक्टिविटी कर सकता है। Way and modality of biofeedbacks, what kind of ways we have provided on the machine through the patient, like visual feedback, auditory feedback, tactile feedback. So what is visual feedback? So like a light, a dial or a graph changes accordingly to physiological activity like EMG graphs. So there is one machine who have like applying on the patient, and they in front of them they are like some activity or performing on the like on the feedback display. So what पेशेंट अप टू लाइक डिस्प्ले में देखिए पेशेंट क्या सीख रहा है और क्या कर रहा है उसको विजुअल फीडबैक बोलते हैं, या फिर डिस्प्ले में चल रहा है पेशेंट उसके अकॉर्डिंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो उसको विजुअल फीडबैक बोलते हैं। व्हाट इज ऑडिटरी फीडबैक? अ साउंड टोन चेंजेस इन पिंच और फ्रीक्वेंसी एज एक्टिविटी चेंजेस। लाइक अगर पेशेंट फीडबैक को मशीन में देख के डिस्प्ले में देख के कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है और एक वायर उससे कनेक्टेड है जो कि उसको प्रॉपर ये फंक्शन करवाने में बता रहा है कि ये प्रोसेस करना है, इसके बाद ये प्रोसेस, इसके बाद ये प्रोसेस आएगा। तो इन प्रोसेस के दौरान उसको एक ऑडिटरी सिग्नल्स भी जाएगा, लाइक यू आर लाइक फ्लेक्सिंग योर एल्बो, लाइक एक्सटेंडिंग योर एल्बो। सो एक सिग्नल प्रोवाइड होता है बायोफीडबैक मशीन में और एक लाइक ऑडिटरी वॉइस रिकॉग्नाइज्ड होता है और वो बोलता है कि ये फंक्शन करो, तब जाके पेशेंट में एक कॉग्निटिव लाइक जो कि वो भूल चुका है वो फैसिलिटेट करवाने में हेल्पफुल होता है। सो नेक्स्ट इज टैक्टाइल फीडबैक। टैक्टाइल फीडबैक लाइक ये बेसिकली इंसान पैसिवली करवाते हैं, इसमें मशीन की जरूरत नहीं होती है। हम पेशेंट को थेरेपिस्ट के द्वारा हैंड के द्वारा मूवमेंट करवा सकते हैं, लाइक ब्रशिंग मूवमेंट, वाइब्रेशन मूवमेंट। सो लाइक वाइब्रेशन ऑन जेंटल पल्स इंडिकेट्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस। लाइक हम पेशेंट को बार बार टैप करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं ताकि पेशेंट में जो कॉग्निटिव लर्निंग स्किल्स है वो डेवलप्ड हो जाए, जो भी वो फॉरगेट कर चुका है मूवमेंट को वो वापस से रीगेन कर सके। सो दैट इज द वे ऑफ मोडालिटी ऑफ बायोफीडबैक. So next is our types of biofeedback. There is like first is electromyographical biofeedback. What is that? Like muscle electrical activity, muscle re-educate, relaxation and strengthening. So जो electromyographical biofeedback होता है उसमें क्या होता है, ये एक इन्वेसिव मेथड पड़ता है। इसमें हम लाइक इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव दोनों है। लाइक सरफेस इलेक्ट्रोड लगाते हैं या फिर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उसमें मसल की हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, मसल एक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड है, इनर्वेटेड है, डीनर्वेटेड है, रीइनर्वेटेड है या पार्शियली इनर्वेटेड या डीनर्वेटेड है। So, इससे क्या होता है, अगर मसल की हमें एक्टिविटी पता चल जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही वो पता चल जाता है, तो हम उसको मसल को री-एजुकेट करवाने में हेल्प करते हैं, लाइक डिफरेंट वे ऑफ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथिंग टेक्निक, और लाइक उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं मसल स्टिमुलेटर, गैल्वेनिक करंट और फेराइटी करंट। सो मसल री-एजुकेट होगी, स्ट्रेंथ डेवलप होगा, पावर डेवलप होगा। सो इलेक्ट्रोमायोग्राफिक बायोफीडबैक इज वन ऑफ दैट। व्हाट इज इलेक्ट्रोडर्मल स्किन कंडक्टेंस बायोफीडबैक? इसमें क्या होता है, इसमें हम स्किन रेजिस्टेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एंजाइटी कंट्रोल। लाइक इसमें ये मशीन होता है, इसमें ये मशीन क्या करता है, हमारे जो हाइपर हाइड्रोसिस होता है उसको कैसे कंट्रोल करें, और जो हमारी एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उसको कैसे मैनेज करें। उसमें उस डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, पेशेंट उस एक्टिविटी को कर परफॉर्म करके उसको लाइक हैबिचुअल में लाके हैबिचुअल करके उसको लर्न कर सकता है और उसकी जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। सो इलेक्ट्रोडर्मल स्किन कंडक्टेंस बायोफीडबैक में ये वर्क होता है। थर्मल बायोफीडबैक में क्या काम होता है, बेसिकली इस मशीन में इस मशीन को ऑन करके हम पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है ड्यूरिंग द लाइक एनी वर्कआउट, एनी एक्सरसाइज, एनी स्ट्रेचिंग। So is peripheral circulation disorder Raynaud's disease. Like Raynaud's disease happening on like peripheries, and they can convert it into the normal color into the yellowish color. So yellowish color में convert हो जाता है और इसमें हम जब भी एक्टिविटी कराते हैं, so उस एक्टिविटी के दौरान उस पेरिफेरीज में लाइक सर्कुलेशन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, लाइक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो कैसा है, ये चेक करने के लिए हम थर्मल बायोफीडबैक का यूज करते हैं। फोर्थ वन इज अ हार्ट रेट कार्डियक बायोफीडबैक। ये क्या होता है, हम ये डायरेक्ट हार्ट के ऊपर लगाते हैं, मतलब हार्ट के ऊपर एक लगाते हैं, लाइक एसओ नोड के ऊपर। लाइक इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हार्ट हमारा जो रिदमिक मूवमेंट है वो प्रॉपर फंक्शन कर पा रहा है या नहीं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे वे में कर रहा है, एकदम प्रॉपर सही वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इसमें रिलैक्सेशन, एंजाइटी और हाइपरटेंशन काइंड ऑफ पर्सन को हम ट्रीट कर सकते हैं। लाइक किसी पेशेंट में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो उस बायोफीडबैक मशीन में हार्ट रेट के थ्रू एक सिग्नल जाता है और मशीन के डिस्प्ले में शो होने लगता है। सो यू आर लाइक एंजाइटी, यू आर लाइक डिप्रेशन, सो यू आर लाइक anxious. So what you can do for like reducing your anxiety or like depression? So it is heart rate cardiac biofeedback. Fifth one is a respiratory biofeedback. What is that? So इसमें क्या होता है, हम मशीन लगाते हैं और इसमें हम लाइक
अस्थमा वाले पेशेंट लाइक और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस जिसमें हमारी जो टाइडल वॉल्यूम लंग्स एक्सपेंशन और लाइक इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की वैल्यू कितनी जा रही है, कम है या ज़्यादा है। सो इसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग कैसा है, डेप्थ ब्रीदिंग कैसा है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसा है, प्रॉपर हो रहा है या नहीं। इस ये हम लाइक एक केबल होता है, वो मशीन से कनेक्ट होता है और लाइक एक वायर आता है हमारे बॉडी में कनेक्ट होता है और हम हमारा रेट ऑफ इंस्पायरेशन चेक करता है। इफ लाइक एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी एंड डिफॉर्मिटी फाउंड इन आवर बॉडी, सो वो उसको रिकॉग्नाइज करके डिस्प्ले में शो करता है और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी बताता है। उस एक्टिविटी को हम करते हैं और उस एक्टिविटी के थ्रू हमारा लर्निंग प्रोसेस लाइक कॉग्निटिव प्रोसेस और लाइक बॉडी की जो डिफरेंट प्रॉपर एबनॉर्मलिटीज है वो प्रॉपर ठीक होने लगती है अगर हम लाइक बायोफीडबैक को इम्प्लीमेंट करते हैं डेली लाइफ में रेस्पिरेटरी। तो 6 मंथ्स इज ईईजी न्यूरो फीडबैक। इकोग्राम जो होता है वो न्यूरो फीडबैक प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, हमारी ब्रेन के ऊपर लगता है। सो इसमें हमें क्या होता है, हमें एपिलेप्सी और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगर कोई पेशेंट एपिलेप्सी का हो, लाइक बस में सीजर्स हो रहे हो, लाइक उसमें उसकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो सही नहीं हो, सो इसमें क्या होता है, वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को और ब्रेन को सिग्नल भेज के चेक करता है ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। इफ दिस ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर, सो ये लाइक डिस्प्ले में शो करता है कि व्हाट यू कैन एक्टिविटी डू, लाइक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन यू कैन डू, लाइक यू कैन different activity you can do, so you're like learn something new and you can rehab to them if you have like suffering any kind of stress, anxiety or epilepsy. Seventh one is a blood pressure biofeedback. What is that? So like if patient is suffering from hypertension, high bp, high blood pressure, actual blood pressure is high, venous pressure is high, so हम एक मशीन लगा के चेक करते हैं और मशीन हमें डिस्प्ले में शो करता है कि योर हार्ट रेट इज टू बी हाई नॉर्मल एज नॉर्मल पर्सन। सो वो हमको एक्टिविटी बताता है कि लाइक रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, लाइक डिफरेंट स्टैंडिंग एक्सरसाइज, लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, डिफरेंट एक्टिविटी वो बताता है जिससे हमारा बीपी लो हो जाए, हाइपरटेंशन कम हो जाए और मैनेजमेंट करने का पूरा प्रोसीजर बताता है वो बायोफीडबैक। सो दैट इज द सेवंथ वन ऑफ बायोफीडबैक।